Hello, friends, and welcome to Siddhi Punjab's. Again, we are here with another strategy video for you, right? ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੰਜਾਬ PCS ਦੀ preparation ਨੂੰ streamline ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, all of those topics we are discussing. And today I am going to discuss with you that how you can write better answers for your PPSC or UPSC, whatever you are preparing. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਡਾਊਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਿ ਮੈਮ ਆਂਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ आंसर शीट्स वगैरह शेयर किया जान. So with regard to that topic only I am going to discuss in this video, right? 4 major areas I'll be discussing here in this video with you. ठीक है, आंसर राइटिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਪਾਰਟਸ ਚ broadly break ਕਰ ਸਕਦੇ हैं. First is content, second is structure, third is presentation, and fourth is time management. ठीक है, all of these 4 parts I will be discussing in detail in this video with you. ये सब क्या है और इन्हां नू किवें अच्छे तरीके नाल कर सकते हैं, that is what I will be discussing. But अगे वधन तो पहला I like to highlight that we are running a number of programs for you. ठीक है, साडा mentorship program चल रहा है जिहदे विच I am guiding you on how to read, study everything. तुसी बहुत सारा कुछ पढ़दे हो बट उन्होंने सही तरीके नाल पढ़ के क्रिस्प नोट्स बना के उन्होंने किवें रिवाइज करना है, that is what I am going to share with you in this program. So do consider joining the program. ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ PCS ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਫॉर ਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ PCS, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਸਕ ਕੀਤੇ ਨੇ so that ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹੇ. So you can join that if that is the requirement. And from the 7th of August we are also starting with our new GS full course. ठीक है, GS ਦਾ full course ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, right? So ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ GS ਦੀ ਪੂਰੀ preparation ਕਰਨੀ ਹੈ, all the basic subjects that you want to prepare, then you can just drop in a message, just contact us on this number. We'll be sharing all the details whatever you require. ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ that whatever you require you can reach out to us. If you need a personal mentor, a personal guide, then join our mentorship program. If you feel like you want to test yourself, join the test series. If you are a beginner and you want basic knowledge on all the subjects, then join our GS full course जिस च असीं सारे subjects detail विच पढ़ावांगे, right? So that is how you can proceed. Now let's see that how answer writing can be done. ਹੁਣ ਦੇਖੋ, whenever you are writing answers in any kind of examination, ਚਾਹੇ ਉਹ UPSC ਹੋ, PPSC ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ state exam ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਦੇ 4 main areas ਹੈ ਜਿਹਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ. First is content, right? So we will see that what do we mean by content, then how we can generate good content. ठीक है, आंसर राइटिंग की सानू चिंता काफ़ी रहती है. बहुत सारे बच्चे सीधा प्रैपरेशन बाद च शुरू करते हैं, दे आस्क अबाउट आंसर राइटिंग फर्स्ट, राइट? सो आंसर राइटिंग का सब तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कंटेंट. कंटेंट, व्हाट इज़ कंटेंट? बेसिकली बेसिक आइडिया अबाउट अ टॉपिक, राइट? बेसिक पॉइंट्स, बेसिक नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ योर कंटेंट पार्ट, राइट? वॉट इज़ कंटेंट? जिमें हुन अगर मैं कहां कि प्रेजिडेंट इज़ द रोल ऑफ प्रेजिडेंट इंपॉर्टेंट इन आवर पॉलिटी, राइट? दैन तुहाडे कोल इहदे अंडर जिहड़े पॉइंट्स होणगे दैट विल बी योर कंटेंट. द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल ऑफ प्रेजिडेंट, राइट? दैट विल बी द कंटेंट दैट यू हैव. ठीक है, कंटेंट दे विच असी डाटा एग्जाम्पल्स नू भी कंसिडर करते हैं, केस स्टडीज़ होन, बेस्ट प्रैक्टिसेस होन, वो सब नू भी कंसिडर करते हैं. ठीक है, सो द इंटायर गैमट ऑफ योर नॉलेज जिन्ना भी तुसी पढ़ रहे हो GS दे विच, all of that is considered as the content, your knowledge base on a particular topic. ठीक है, so this content is very important when you are writing answers. हुन मैं तुहानू कहदा कि एप्पल बारे कुछ लिखो, right? And you know, then you know about apple, तो कुछ कुछ points पता है, it is red in color, it is healthy food, apple a day keeps a doctor away. इस तरीके नाल जो जो तुहानू information है तुसी लिख सकते हो, right? हुन if I ask you कि write about fig,
write about grapefruit, right? You won't be able to write because ਇਹ ਸਾਰੇ fruits ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ point ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਪਾਵਾਂਗੇ, right? So that is what is for answer writing. First step is content building, focusing on all the topics of the syllabus, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਆਨਸਰ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕੰਟੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਪਨਿੰਗ? ਦਿਸ ਹੈਪਨਸ ਫਰੋਮ ਯੋਰ GS. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ GS ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, that is the one basic source for preparing all the content on all the topics of your syllabus. Second source ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ current affairs, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ हैं, they help in building lot of content, ठीक है? So majorly from this areas you are building your entire content for the preparation, right? So now ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. You can say history ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ, historical basis, cultural basis, geographical basis, right? societal basis, ਹਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਓਗੇ, ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਓਗੇ, ਰਾਈਟ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ, right? I have just given you this topic that write about Kashmir. What will you write? You will be able to write when you have read the history of Kashmir, ठीक है? किवें पहला मुस्लिम्स यूज टू रूल इन काश्मीर, या किसी टाइम ते महाराजा रणजीत सिंह दे अंपायर च भी काश्मीर आंदा सी, एंड दैन हौली हौली किवें हिंदू राजा दा राज होया, किवें ब्रिटिश टाइम ते चेंजिस होए काश्मीर दे विच, एंड दैन फाइनली किवें इंडिया दे विच इंक्लूड हो गया काश्मीर, ठीक है? हिस्टोरिकली यू विल बी एबल टू राइट. then you will be able to write about geographical features, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ कि ये माउंटेनियस रीजन्स है, इतने वैलीज है बड़ी सुंदर सुंदर, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ऑल ऑफ दैट यू कैन राइट व्हेन यू हैव रेड जोग्राफी, ठीक है? कल्चरल पार्ट, इतने ड्रेसिस, फूड्स, फेस्टिवल्स क्या सब सैलीब्रेट होंदा है, दैट यू कैन राइट अबाउट ओनली व्हेन यू हैव रेड आर्ट एंड कल्चर, राइट? लोग कह जे ने, इथों एजुकेशन कह जी है, हेल्थ सिस्टम कह जा है, all the societal aspects you can write when you have read about society, right? कहने का मतलब ये है that content is the basic foundation of your answer writing, ठीक है? I can ask you a question on any topic, you will be able to answer, तुसी उदों ही आंसर कर पाओगे जदों तुसी वो टॉपिक डिटेल विच पढ़िया है from each perspective, राइट? सो इसे लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि GS के सिलेबस कंप्लीशन पर फोकस करो, करंट अफेयर्स रेगुलरली फॉलो करते रहो ताकि तुहाडा कंटेंट स्ट्रॉन्ग एंड यू नो टू द पॉइंट रेलिवेंट है, ठीक है? सो दैट इज़ द फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ योर आंसर राइटिंग, ठीक है? सेकेंड इंपॉर्टेंट एरिया इज स्ट्रक्चर. कंटेंट अपने कोल है, अपने कोल बहुत नॉलेज है एक टॉपिक ते, नाउ हाउ डू वी पुट इट ऑन द पेपर, how do we put it on the answer sheet? That is what is important, right? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਟਰਕਚਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਬॉडी, ਕਨਕਲੂਜਨ. ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, we will start with a brief introduction, we will follow it up with the body part, and we will conclude it with a sound, positive outlooking conclusion, right? So now introduction the various ways hunde hai depending on the subject. तुसी economy da लिख रहे हो, geography da, polity da answer लिख रहे हो, depending on that introduction can vary, depending on the question demand it can vary, right? सो ऑल दोज डिटेल्स कि तुसी केड़े केड़े सब्जेक्ट लिए क्या क्या इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, ऑल ऑफ दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन माई मैंटरशिप प्रोग्राम. तो इसीलिए मैंटरशिप प्रोग्राम तो काफ़ी हेल्प कर सकता है, बिकॉज इन डेप्थ डिस्कशन विल बी देयर ऑन एवरी आस्पैक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है? सो इंट्रोडक्शन तुसी काफ़ी तरीक़ों नाल लिख सकते हो. तुसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नाल स्टार्ट कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स नाल स्टार्ट कर सकते हो, एग्जाम्पल्स नाल, स्टोरीज नाल. You can do it in n number of ways, ठीक है जी? Body which you will try to answer the question that has been asked. Conclusion will you will try to give a positive outlook, because you are bureaucrat, you are expected to be a person of caliber who is able to solve the problems,
ठीक है, तुसी पंजाब PCS ਦੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। A problem solver is what is required by the commission. So they will want you to give a positive outlook, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ क्या अच्छा कर सकते हैं ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਆਪਾਂ conclusion ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, right? All of your answers should be structured in this way. अगर तुसी proper structuring नहीं करते हो, headings sub headings नहीं बनाने हो, then you are not going to get very good marks from the examiner. ठीक है, examiner wants a person who is organized, who understands the demand of the question and accordingly वो लिख रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो उन्होंने आंदा है that is what they write, not what is asked in the question। ठीक है, सो एक स्ट्रक्चर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये विच हैडिंग्स सब हैडिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। हैडिंग्स शुड बी रेलिवेंट टू द क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड, राइट? सो इस तरीके नाल तुसी स्ट्रक्चरिंग करोगे। स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइड्स ते तुसी बॉक्सेस दे विच डायग्राम्स भी बना सकते हो या फ्लो चार्ट्स, वट एवर यू वॉन्ट टू, राइट? ये सब इस स्ट्रक्चर विच इंक्लूडेड होना चाहिए है टू मेक अ इंप्रेसिव आंसर। ठीक है, दैट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ योर आंसर राइटिंग, दैट इज स्ट्रक्चरिंग प्रॉपरली, राइट? प्रेजेंटेशन इज़ द थर्ड पॉइंट। थर्ड एरिया जिहड़ा आंसर राइटिंग च तुसी ध्यान च रखना है, दैट इज़ प्रेजेंटेशन। फर्स्टली नीट प्रेजेंटेशन बहुत होनी चाहिए है। लाइक यू कैन रीड दिस प्रॉपरली। अगर तुसी ये आंसर रीड करना चाहो, प्रॉपरली रीड कर सकते हो। नो कटिंग एंड शटिंग इज़ देयर। ठीक है, इन्ना खराब आंसर नहीं है, क्लीयरली अच्छे तरीके नाल रीड किया जा रहा है, स्पेसिंग अच्छी है, वर्ड्स दे विच भी, लाइन्स दे विच भी, राइट? ऑल ऑफ दोज फैक्टर्स मैटर, क्योंकि देखो एग्जामिनर ने 500 या 1000 शीट्स या क्वेश्चंस चैक करने हैं। वो तुहाडे लई मेहनत नहीं करन बैठन वाला। अगर तुसी इन्ने गंदे गंदे आंसर्स लिखे एंड सोचा कि एग्जामिनर आपे लभ लूगा आंसर, राइट? एग्जामिनर इज़ नॉट गोइंग टू वर्क हार्ड फॉर यू। ठीक है, उन्हें क्या करना है, सीधा काटा मार के 0 नंबर या 1 नंबर दे देना है एंड गल खत्म। इफ़ यू वॉन्ट गुड मार्क्स, योर प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी वेरी नीट, क्लीन एंड वेरी वेरी क्लीयर टू द एग्जामिनर। ठीक है, सो आंसर राइटिंग च ध्यान रखना है। पेन्स का काफ़ी ज़्यादा इशू रहिंदा बच्चों नूं। आई वुड सजैसट यूज़ जस्ट 1 पेन। ठीक है, क्योंकि इन्ना टाइम नहीं हुंदा कि तुसी बारी बारी पेन्स चेंज करते रहो। हैडिंग्स लई ब्लैक पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन, नोबडी कैन यूज़ इट। यूज़ 1 ब्लू पेन या ब्लैक पेन, जिहड़ा भी तुसी यूज़ करना चाहते हो, एंड देन यूज़ पेंसिल फॉर डायग्राम इफ़ यू वॉन्ट टू। ऑल्दो ढा के दोबारा दोबारा बनाने का भी टाइम किसी को नहीं हुंदा। ठीक है, आई यूज़ टू यूज़ मोस्टली पेन ओनली। अगर कोई बहुत ही कॉम्पलैक्स डायग्राम हुंदा सी, जिमें वर्ल्ड मैप बनाना हुंदा सी, दैन आई यूज़ टू यूज़ पेंसिल। ऑल्दो इरेज कर करके ड्रॉ करन दा बिल्कुल टाइम नहीं हुंदा, सो यू कैन मेक इट विद पेंसिल और पेन ऑल्सो। ठीक है, सो बाकी यू नो अगर UPSC की तुसी प्रेपरेशन कर रहे हो तो इस तरीके की आंसर शीट मिलेगी एंड यू आर नॉट अलाउड टू राइट इन दीज मार्जिनस। मार्जिनस च नैगेटिव मार्किंग होंगी है। UPSC ने तो डेडिकेटेड मार्जिनस बनाए होंगे हैं एंड यू हैव टू अवॉइड राइटिंग इन दी मार्जिनस। बट अगर तुसी पंजाब PCS की तैयारी कर रहे हो, देयर आंसर शीट्स आर इन दी लैंडस्केप मोड। ठीक है, दे विल नॉट बी लाइक दिस। ठीक है, दे विल बी लाइक दिस एंड उत्थे यू नो मार्जिनस नहीं बने होंगे। सो मार्जिनस का एडा कोई चक्कर है नहीं, बट तुसी खुद माइन्यूट जे मार्जिनस क्रिएट कर सकते हो सो दैट यू हैव अ सेंस ऑफ अलाइनमेंट। ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू यू कैन क्रिएट इट, अदरवाइज दिस कैन बी स्किप्ड। रूल्ड लाइना होंगी है पंजाब PCS विच, तो इन्ना कोई इशू नहीं आएगा मार्जिनस वाली सिचुएशन विच, राइट? दैट इज़ अबाउट प्रेजेंटेशन। थर्ड स्टैप है साडा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए है एंड यू कैन यूज़ ऑल दीज काइंड ऑफ डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स एंड मैप्स फॉर योर प्रेजेंटेशन, ताकि तुहाडे मार्क्स एक्सट्रा मिलन, एग्जामिनर नूं इंप्रैसिव लगे। ये सब किमें बनाने हैं, कित्थों एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ऑल ऑफ दैट आई एम डिस्कसिंग इन माई मैंटरशिप प्रोग्राम। अगैन दैट इज़ अ वेरी सबसटैंशियल प्रोग्राम, तुहाडी सारी प्रैपरेशन नूं स्ट्रीमलाइन कर सकता है। सो डू कंसिडर जॉइनिंग इट। यू कैन मैसेज अस एंड डिस्कस विद अस एरिया डिटेल्स अगर तुसी जानना चाहते हो। सो लुक इन टू दैट, राइट? एंड फाइनल जिहड़ा कॉम्पोनेंट है तुहाडी आंसर राइटिंग दा, फोर्थ कॉम्पोनेंट इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत लंबे पेपर होंगे हैं, तुसी PPSC की गल करो चाहे UPSC की, देयर आर
n number of questions that you have to write in limited time period. So it is very important कि तुसी आपदे time ਨੂੰ अच्छे तरीके नाल manage करो, right? ਹੁਣ देखो total questions PPSC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ हैं 20 to 21 questions ਹੁੰਦੇ है including all the parts and sub parts. कुछ questions 15 markers ਹੁੰਦੇ है, right? There will be 15 marker questions, ठीक है? 20 मार्क भी कदी कदी आंदे है, ऑल्दो हुन घट गए ने. देन ए बी पार्ट बना के 10 मार्क्स दे भी क्वेश्चंस आंदे ने, राइट? ठीक है. एंड एक क्वेश्चन हर पेपर च आंदा है जिस च 4 पार्ट्स हुंदे है, ए बी सी डी. ठीक है. कंपैरिजन हो सकता है या छोटी छोटी डेफिनेशंस पूछ सकते हैं जेड़े कि बेसिकली 5 मार्क्स दे हुंदे ने. सो टोटल 20 मार्क्स दा ये एक क्वेश्चन हुंदा है. ठीक है. सो ऑल इन ऑल तुहाडे तो 20 तो 21 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्ट्स वगैरह मिला के, राइट? हुण तुहाडे कोल टोटल टाइम कितना है इस सारे 20-21 क्वेश्चंस करन लई? दैट इज 180 मिनट्स, राइट? सो असेंशियली तुहानू पर क्वेश्चन सॉल्व करन लई 8 to 9 मिनट्स एट मैक्स मिलते ने, राइट? सो मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुसी आपकी स्पीड काफ़ी तेज़ रखो. दिस इज़ जस्ट दी आइडियल कंडीशन. तुसी यू नो अटेंडेंस शीट भी भरनी हुंदी है तो होर ज़्यादा हड़बड़ी भी काफ़ी हो जाती है. तो असेंशली तुहानू 7 to 8 मिनट्स ही मिलते हैं एक क्वेश्चन नू लिखन लई, बिकॉज यू हैव टू रीड ऑल्सो, ਉਹਦੇ बारे सोचना भी है क्वेश्चन के बारे, है ना? सो इसलिए लिखन विच एग्जैक्टली 7 to 8 मिलते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मैनेज योर टाइम वैल. ठीक है. सो इसलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि तुहाडी स्पीड बने उस एरिया दे विच. ठीक है. इसनू इस तरीके नाल भी कर सकते हो. तुहानू टोटल 3 आवर्स मिलते हैं, 180 मिनट्स टोटल 3 आवर्स पेपर लई. इनू 3 सैक्शनस डिवाइड कर सकते हो. ठीक है. फर्स्ट आवर दे विच ट्राई टू डू 6 to 7 क्वेश्चन, सैकेंड आवर दे विच अगेन 6 to 7 क्वेश्चन, लास्ट दे विच 6 क्वेश्चंस तुहाडे कोल बचणगे करन लई, राइट? स्टार्ट विद द आंसर्स और द क्वेश्चंस दैट यू नो. ठीक है. जेडे नहीं आंदे हो तो स्टार्ट ना करियो, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम. स्टार्ट अटैम्प्टिंग द पेपर फ्रॉम द आंसर्स और द क्वेश्चंस यू नो, ताकि वो जल्दी जल्दी कवर हो जान ते तुहानू कॉन्फिडेंस भी बनता जाए कि टाइम नाल तुहाडा पेपर कंप्लीट हो रहा है. अगर पहला ही ना आने वाले क्वेश्चन ते रुक गए, आधा घंटा 15 मिनट वेस्ट करते एक क्वेश्चन ते, then you will have so much stress कि ਜਿਹੜਾ बाकी ਦਾ पेपर है तुसी किवें कवर करोगे एंड ਤੁਹਾਡਾ बाकी ਦਾ पेपर भी खराब हो जाएगा, राइट? सो स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू नो दी आंसर. पहला ओवले सारे क्वेश्चंस करो इनिशियल आवर विच, दैन थोड़ी स्पीड वैसे भी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज यू आर इन टू द मोड ऑफ द यू नो राइटिंग दी आंसर्स. सो उस तो बाद तुसी नैक्सट सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस जिहड़े आंसर कर सकते हो, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरीके नाल तुसी टाइम मैनेज करो. इफ़ यू डू नॉट मैनेज योर टाइम प्रॉपरली दैन तुहाडा पेपर कंप्लीट नहीं होएगा एंड काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फिर आ सकती है, अपने मार्क्स प्रॉपर नहीं आएंगे इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर, राइट? सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू फोकस. फर्स्ट, बिल्ड कंटेंट बाय रीडिंग मोर एंड मोर. सेकेंड, presentation should be very good. Third, structure, proper structure you have to follow. And fourth, time management should be proper, right? इन्ना जो अगर आप किसी भी स्टेप पे ढिल दिने हैं तो लाइकली है कि अपने मार्क्स उन्ने ज़्यादा इंप्रैसिव ना आन, राइट? इन्ना चीज़ों अगर तुसी डिटेल च सुनना चाहते हो, डिटेल च सीखना चाहते हो, इफ़ यू वांट योर नोट्स टू बी परफेक्ट, इफ़ यू वांट योर आंसर्स टू बी परफेक्ट, इफ़ यू वांट योर रिविजन टू बी रेगुलर, देन जॉइन आवर प्रोग्राम. उस मैं यही सब डिटेल्स तुहानू सिखा रही हैं, राइट? फाइनली दिस इज़ अ सैंपल ऑफ PCS दे आंसर शीट. दिस इज़ हाउ PCS आंसर शीट लुक्स लाइक. ये इस तरीके नाल लैंडस्केप मोड विच हुंदी है, राइट? सो इत्थे सारे क्वेश्चंस तुहानू पेज नंबर्स लिखने पैंदे हैं. एज आई टोल्ड यू कि तुहानू काफ़ी कुछ होर फॉर्मैलिटीज़ भी करनियां पैंदियां. अटेंडेंस शीट भरना, आवली शीट भी तुहानू पढ़नी पैंदी है कि तुसी केड़ा क्वेश्चन केड़े पेज नंबर ते लिखा है. ऑल्दो PPSC ने लिखा होया कि सीक्वेंस फॉलो करो, इधर उधर ना लिखो, वी विल नॉट चेक इट, स्टिल यू हैव टू फिल दिस शीट. ठीक है. सो इन्ना चीज़ा ते भी टाइम लगता है, राइट?
कई बार बच्चों ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਿਆ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ डिफरेंट लोगों के नाम है। दैट मीन्स मल्टीपल पीपल आर चेकिंग अवर आंसर शीट्स, नॉट सिंगल पर्सन बट मल्टीपल पीपल चेक आर आंसर शीट्स। सो दे आर नॉट चेकिंग इट सीक्वेंस वाइज, जो उन्होंने क्वेश्चन एलोकेट होया है दे आर चेकिंग इट एंड दे आर मार्किंग देयर रिस्पॉन्स हेयर। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर PPSC शीट लुक्स लाइक, राइट। RTI ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੰਜਾਬ PCS ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਨਾ। that is why some of the answer sheets we have in market, so that is why I'm sharing it with you here। और मैंने जिन्नियां भी टॉपर्स दी आंसर शीट्स मिलनगियां नेक्स्ट सेशन च I'll try to share those with you, right। that is all for today। अगर you have any doubt, any query, reach out to us at this number, we'll be there to help you। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਸਟ ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਅ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਔਨ ਦਿਸ ਨੰਬਰ। ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦ ਲਿੰਕ ਇਨ ਦ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ। ਦੇयर ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ PDFs ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ हैं, you will get it there, right। that is all for today's session। thank you so much for joining।